بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں بول نیوز ہیڈ کوارٹرز میں دن بھر کی اہم خبروں کے ساتھ میں ہوں سلمان مرزا، میں ہوں سہرش زہیب اور میں ہوں مہوش تبسم۔ یہ سب آپ کو بتائیں گے۔ سب سے پہلے آپ کو خبر دیں گے، کبھی خطری خط کبھی کیلیبری فونٹ، پینما کیس میں نت نئے جھوٹ بولے گئے، حلف اٹھا کر غلط بیانی کی گئی۔ وزیر اعظم عمران خان نے رحمت للعالمین کانفرنس میں سیاسی مخالفین کو بھی لتاڑا، بولے اصل جمہوریت ہو تو جس پر الزام لگے وہ میڈیا پر بھر نہیں آ سکتا، لیکن پاکستان میں سب جانتے ہیں سینیٹ الیکشن میں پیسہ چلتا ہے مگر کچھ نہیں ہوتا، نظام جوں کا توں چل رہا ہے، انصاف اور انسانیت کی وجہ سے قوم مضبوط ہوتی ہے۔ میں پینما کیس میں میرے ساتھ اور بھی میرے لوگ بیٹھے جو عدالت میں تھے، اب میں آپ کو کیا بتاؤں کہ کس طرح کے وہاں جھوٹ بولے گئے۔ قطری خط آ گیا، آپ کو میں یقین دلاتا ہوں کہ انگلینڈ کے اندر اگر قطری خط آ جاتا تو اسی وقت کیس رکنا تھا اور اسے جیل میں ڈال دینا تھا۔ وہ کیلیبری فونٹ 2007 میں آتی ہے، وہ 2006 میں کانٹریکٹ دکھا دیتے ہیں، ابھی وہ فونٹ آئی نہیں ہوتی، اس کے اوپر کوئی ایکشن نہیں لیا جاتا۔ یہ اوتھ کے اوپر جھوٹ بولا جا رہا ہے۔ وہاں کا عدالتی نظام اور یہاں کا زمین آسمان کا فرق ہے۔ وہاں کبھی کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا کہ جناب ووٹ بکے گا، سب کو پتا ہے سینیٹ کے اندر الیکشن میں پیسہ چلتا ہے، وہاں کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا یہ۔ وہاں اگر کسی کے اوپر کنوکشن ہو جائے یا چلے اس کے اوپر الزام لگ جائے کہ اس نے پبلک کے پیسے کی چوری کی ہے، وہ پارلیمنٹ تو چھوڑے وہ کسی میڈیا میں اپنی شکل نہیں دکھا سکتا۔ جب تک ہم اپنے ملک کے اندر یہ قانون کی بالادستی قائم نہیں کرتے، جب تک ہم یہ جنگ نہیں جیتتے، نہ یا ملک میں صحیح جمہوریت آنے لگی ہے، نہ یا ملک میں خوشحالی آنے لگی ہے۔ مریم نواز کہتی ہیں پاکستان میں مہنگائی سے تنگ والدین بچوں کو زہر پلا کر خودکشیاں کر رہے ہیں، لیکن وزیر اعظم ریاست مدینہ کا درس دیتے ہیں۔ شہباز گل نے جواب دیا کہ مریم نواز کو حضرت عمر کی مثالیں دینا زیب نہیں دیتا تھا۔ وزیر اعظم کی اپوزیشن پر تنقید، مریم نواز کا جواب بھی آ گیا۔ ٹویٹر پر لکھا، جس ملک میں عوام فاقوں سے مر رہے ہیں اس ملک کا وزیر اعظم ریاست مدینہ کی باتیں کرتا ہے، جس کے کتے بھی اعلیٰ قسم کے گوشت پر پلتے ہوں، اسے ریاست مدینہ کا نام زبان پر لاتے ہوئے 1000 بار سوچنا چاہیے، کیونکہ مدینہ وہ ریاست تھی جس کے خلیفہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کندھوں پر بوریاں اٹھا کر غریبوں کے گھروں پر دستک دیتے تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ایک کرتے اور چادر تک کا حساب دیا، لیکن آپ توشہ خانہ ہی ہضم کر گئے۔ ٹویٹر پر ہی معاون خصوصی شہباز گل نے مریم نواز کو جواب الجواب دیا، لکھا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قول کا حوالہ وہ نااہل، جال ساز اور چال باز دے رہے ہیں جن کی دور حکومت میں گلوبل ہنگر انڈیکس میں پاکستان کا نمبر 119 ممالک میں سے 106 تھا۔ آج کورونا کی وجہ سے بھوک کا عفریت پوری دنیا پر ناچ رہا ہے، لیکن پاکستان کا رینک 92 ہے۔ نون لیگ مہنگائی کے خلاف 20 اکتوبر سے احتجاجی مظاہرے شروع کرے گی۔ شہباز شریف کی زیر صدارت اجلاس میں پلان تشکیل دے دیا گیا۔ دھاندلی کے بعد مہنگائی کارڈ، نون لیگ نے 20 اکتوبر سے سڑکوں پر آنے کا پروگرام تشکیل دے دیا۔ نون لیگ شہباز شریف کی زیر صدارت اجلاس ہوا، جس میں سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی، احسن اقبال، خواجہ سعد رفیق، مریم اورنگزیب اور پارٹی کے چاروں صوبائی، آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان کے صدور نے شرکت کی۔ پاکستان مسلم لیگ نون نے ملک گیر احتجاج کے لیے ریلیوں، جلسوں اور مظاہروں کے پروگراموں کو حتمی شکل دے دی۔ صوبوں اور اضلاع میں پارٹی عہدیداروں کو احتجاج کی کال دی گئی۔ اعلامیے کے مطابق نون لیگ پہلا احتجاجی مظاہرہ راولپنڈی میں کرے گی۔ مظاہروں کے لیے مختلف کمیٹیاں تشکیل دے دی گئی ہیں۔ اپوزیشن ذمہ داری کا ثبوت دے، 20 سے 22 ماہ الیکشن میں باقی ہیں۔ وزیر داخلہ شیخ رشید اپوزیشن کو وارننگ دیتے رہے، کہا کہ حکومت 5 سال پورے کرے گی، کوئی غلط فہمی میں نہ رہے۔ اپوزیشن نے کوئی غلطی کی تو ان کے لیے مسائل پیدا ہوں گے۔ اپوزیشن جان لے یہ شور شرابے کا وقت نہیں، خطہ اہم ترین دور سے گزر رہا ہے۔ اپوزیشن افواہوں کے سہارے تحریک چلانا چاہتی ہے، احتجاج قانون کے دائرے میں رہ کر کریں، ہمیں قبول ہوگا۔ خان نے یہ اشرا جس شان و شوکت سے ملا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی برکت دے اور ہمارے مسائل آسان کرے۔ شور شرابے کا وقت نہیں ہے، اہم سیاست سے یہ خطہ گزر رہا ہے، وہ اپنی ذمہ داری کا ثبوت دیں۔ 20-22 مہینے کو رہ گئے ہیں، اصل میں پوچھے تو 15 مہینے رہ گئے ہیں۔ آخری 6 مہینے کون کمپین کے ہوتے ہیں؟ اگر انہوں نے سیاسی طور پر
कमज़ोरी का मुजाहरा किया और मसाइल पैदा किए तो ये मसले उनके लिए पैदा होंगे। हुकूमत ने 3.25 साल करनी है। अफवाहों के सहारे ये तहरीक चलाना चाहते हैं। अफवाहें दम तोड़ जाएंगी इंशाअल्लाह 10-15 दिनों बाद और इनको शर्मिंदगी होगी। और शुरू करें, हम आइन और कानून के दायरे में जो प्रोटेस्ट करेंगे वो काबिल कबूल है। बलूचिस्तान असम्बली में वज़ीर आला के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद कल पेश की जाएगी। नाराज अरकान ने अपोजिशन को मिलाकर अपने नंबर शो कर दिए। ज़हूर बुलैदी का दावा है कि इजलास के दौरान तादाद इससे भी ज्यादा होगी। क्या जाम कमाल का दौरा इस्लामाबाद नाकाम हो गया? वजीर आला बलूचिस्तान को हटाने के हामी ग्रुप ने अपनी अक्सरियत वाजे कर दी। अपोजिशन अरकान के साथ इजलास बुलाया जिसमें 36 अरकान शरीक हुए। तहरीक अदम एतमाद को कामयाब बनाने के लिए 33 वोट दरकार हैं। नाराज ग्रुप के रहनुमा ज़हूर बुलैदी ने कहा, अच्छा है कि वजीर आला इस्तीफा दे दें वरना उनका जाना तो ठहर चुका है। बलूचिस्तान में अपोजिशन की सबसे बड़ी जमात JUIF के पार्लिमानी लीडर ने भी बुध को पेश होने वाली तहरीक अदम एतमाद की हिमायत का ऐलान कर दिया। BNP और खैबर पख्तूनख्वा मैप के अरकान ने भी वजीर आला को इस्तीफा देने का मशवरा दे दिया। और जनाब, आपने सुना ही होगा कि चोर चोरी से जाए लेकिन हेरा फेरी से ना जाए। इंडियन आबदोज की तीसरी बार पाकिस्तानी हुदूद में दाखिले की कोशिश पाक बहरिया के एयरक्राफ्ट ने नाकाम बना दी। इंडियन आबदोज को बहुत पहले ही देखकर उससे ब्लॉक कर दिया। भारत की जानिब से इससे पहले भी 2 मायूस कुन कोशिशें की जा चुकी हैं जिसमें इंडियन आबदोज ने पाकिस्तानी सरहदों में चोरी छुपे दाखिल होने की कोशिश की। पाकिस्तान नेवी की पेशा वराना सलाहियत और अहलियत का मुंह बोलता सबूत। हरदम चौकस और चौकन्ना और समंदर के एक एक हिस्से पर पूरी नज़र। भारतीय आबदोज पकड़ने और ब्लॉक करने पर पाकिस्तानी सियासी क़यादत अश कर उठी। पाक बहरिया को शानदार अल्फाज में सराहा। शेख रशीद का पाक बहरिया को सलाम। फवाद चौधरी का पाकिस्तान नेवी की सलाहियत को खराज तहसीन। बिलावल और शहबाज शरीफ भी दाद दिए बगैर ना रह सके। पाकिस्तानी सियासी क़यादत का पाक बहरिया पर फख्र। वाक़े पर भारत के खिलाफ शदीद रद्द-ए-अमल। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने ट्वीट में लिखा कि पाकिस्तान नेवी ने अपने पेशेवराना अहलियत का सबूत देते हुए भारतीय आबदोज को पाकिस्तानी समंदरी हुदूद में घुसने नहीं दिया। वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने पाक बहरिया को सलाम पेश कर दिया। ट्वीट में लिखा कि दुनिया पाकिस्तान के खिलाफ भारतीय जारियत का नोटिस ले। शेख रशीद मुल्क की दिफा में पाक बहरिया की पेशेवराना सलाहियतों का पहले भी मोतरफ नजर आए हैं। शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान नेवी को शुजा करार दे दिया। कहा, तारीख गवाह है कि पाकिस्तान की आर्मी, फिजाइया और बहरिया ने अर्ज़ वतन के दिफा के लिए हमेशा शुजाअत और पेशावराना सलाहियतों का मुजाहिरा किया। बिलावल ने भार दिया और पाक बहरिया की पेशावराना महारत की तारीफ की। पाकिस्तानी सोशल मीडिया सारिफीन ने पाकिस्तान नेवी को शानदार अल्फाज में खराज तहसीन पेश किया। कराची में 12 रबीउल अव्वल जश्न ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मरकजी जुलूस अपने मुकर्रर रास्तों से होता हुआ निश्तर पाक में इख्तिताम पजीर हो गया। ताम हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करने वालों की बड़ी तादाद अभी नुमाइश शुरंगी पर मौजूद है। वहाँ पर क्या सूरत हाल है कि जानते हैं बोल न्यूज़ के नुमाइंदे इरशाद संजरानी से। इरशाद, बताइएगा। कराची में 12वीं रबीउल अव्वल का मरकजी जुलूस जो है इस वक्त नुमाइश पर पहुंच चुका है और मेमन मस्जिद और खरादर से होता हुआ मरकजी रास्तों से जो मुतय्यन कदर रास्तों से होता हुआ यहाँ पर नुमाइश पर पहुंच के ख़त्म हो चुका है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करने वाले, चाहने वालों की, उम्मतियों की आप देख सकते हैं बड़ी तादाद इस वक्त भी यहाँ पर मौजूद है। कैमरामैन मोहम्मद यूसुफ दिखा सकते हैं, चारों तरफ इस वक्त भी रश है और रास्तों पर जो है हमने सिक्योरिटी के इंतजाम सख्त इंतजाम किए गए थे। जो सेल्यूलर जो नेटवर्क सर्विस है यहाँ पर बंद है और सिक्योरिटी के पास ये बंद की गई थी। सफीरों का इंतजाम किए गए थे और इसके अलावा हम देखें कराची भर में, शहर भर में सरकारी इमारत हो या दूसरी इमारत हो, वहाँ पर जो है बरक़े कुमकुम से जो है जो बिल्डिंगों को, इमारत को सजाया गया था। यहाँ पर जो जुलूस जो है मरकज़ जुलूस 12वीं रबीउल के यहाँ पर नुमाइश पर पहुँच कर इख्तिताम पजीर हो चुका है। सुन्नी देर से जो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि एक कॉन्फ्रेंस की जा रही है यहाँ पर और इसके अलावा एक मरकज़ी जो खातमुन नबीन कॉन्फ्रेंस थी वो नश्तर पार्क में हुई थी और इसमें उलमाए मशाक ने खिताब किया है। लोगों की बड़ी तादाद में, हज़ारों लाखों की तादाद में जो बहुत शुक्रिया इरशाद संजरानी। ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुनासबत से इचरा के चौक में लंगर का एहतमाम किया गया, जहां 50 से ज़ायद मुख्तलिफ अनवा की चीज़ें बतौर लंगर तकसीम की जा रही हैं। हमारे नुमाइंदे जाबिर वकास इस वक्त वहां पर मौजूद हैं, उनसे जानते हैं क्या समा देख रहे हैं। जी जाबिर, आगाह कीजिएगा।
जी बिल्कुल, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की यौम विलादत को तमाम मुसलमान मजहबी अक़ीदत और जज्बे के साथ जो है वो मना रहे हैं। इस वक्त मैं इछरा में मौजूद हूँ, जहाँ पे आशिकान रसूल की जानिब से बड़े पैमाने पर लंगर का अहतमाम किया गया है और एक बहुत ज़्यादा यहाँ पे डिशेस की वैरायटी रखी गई है, लंगर तकसीम किया जा रहा है इछरे में, इस इलाके में। और जिन्होंने ये इसका अहतमाम किया है, एहसान साहब, वो हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले तो मैं तमाम उम्मत मुहम्मदिया के सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जश्न वलादत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारकबाद पेश करता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह ये 32 साल से हमारे बुजुर्गों का शुरू किया हुआ सिलसिला है, जिसमें अल्हम्दुलिल्लाह 11 रबीउल अव्वल को महफिल मिलाद और 12 रबीउल अव्वल को फ्री मदरी फूड स्ट्रीट लगाई जाती है, जिसमें अल्हम्दुलिल्लाह 50, 60 से 70 किस्म के इकसाम के स्टॉल्स लगाए जाते हैं, जिसमें मुख्तलिफ इकसाम की चीज़ें होती है। जैसे आप देख रहे हैं माशाल्लाह फल फ्रूट में 10-12 किस्म की आइटम है, बारबेक्यू है, टिक्के हैं, कबाब है, चपली कबाब है, फ्राइड चिकन है, सब्ज़ चाय है और अल्हम्दुलिल्लाह कतलम्मा है, जलेबियाँ, हलवा पूरी है। और अल्लाह पाक की दी बेबहा अल्हम्दुलिल्लाह नेमत सरकार के आने वाले आशिकों को अल्हम्दुलिल्लाह सरकार की खुशी, विलादत की खुशी में हम पेश कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। यकीनन यही जज्बा जो है वो एक मुसलमान हो और सच्चे आशिक रसूल की निशानी होती है, और इसी तरह अल्लाह ताला जो है वो इन चीज़ों को जो है वो कबूल फरमाए। बहुत शुक्रिया आपका जाबिर वक्कास। पेशावर में जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिलसिले में तकारीब का सिलसिला जारी है। अब से थोड़ी देर बाद मिलाद चौक में मरकजी जुलूस बरामद होगा, जो कि किस्सा ख्वानी बाजार में इख्तिताम पजीर होगा। मजीद बताएंगे हमारे नुमाइंदे अनवर ज़ेब। जी बिल्कुल, मुल्क भर की तरह पेशावर शहर में भी जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिलसिले में जुलूसों और तकारीब का सिलसिला जारी है। पेशावर शहर में आज सुबह का आगाज़ तोपों की सलामी से हुई और इसके बाद जो है शहर के मुख्तलिफ मकामात पर जुलूस बरामद हुए और ये जुलूस अपने जो मुकर्ररा मकामात है वहाँ पर पहुँच कर एख्तिताम पजीर हुए। इन जुलूसों में हज़ारों की तादाद में जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चाहने वालों ने शिरकत किया और नातिया कलाम पेश किए। इस वक्त मैं पेशावर शहर के मिलाद चौक में मौजूद हूँ और यहाँ पर पेशावर शहर का जो मरकज़ी जुलूस है वो यहाँ से बरामद होता है। थोड़ी देर बाद जो है यहाँ से जुलूस बरामद होगा। जहाँ से ये जुलूस गुजरेगा वो तमाम है वो बरकी कुमकुमों से सजाई गई हैं। सिक्योरिटी के भी सख्त इंतजामात किए गए हैं, पुलिस की भारी नफरी तैनात की गई हैं। ये जुलूस यहाँ से जब बरामद होगा तो ये अपने मखसूस रास्तों से होता हुआ किस्साखानी बाज़ार पर एहतिताम पजीर होगा, जहाँ पर जो शहर भर के उलमा है वो जहाँ पर इकट्ठे होंगे। आम लोग भी शिरकत कर रहे हैं इस जुलूस में और बच्चों की भी बड़ी तादाद जो है वो इसमें शामिल है। बहुत शुक्रिया सारी सूरत हाल से आप आगाह कर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।